in my class. But if someone is trying to join with only name, so I will not allow him uh, to admit in my class. He can never try to join my meeting without your roll number and name. Okay, so Muhammad Hamid, I will not allow him to join my class. Okay, but so just before I start my lecture, I just want to recall your memory. Okay, what we have covered in last two lectures. So in first lecture, I discussed about the subject discrete structure, and also I discussed about grading policy for this course. Also, I discussed what are the objectives of this subject. Then in detail, I discussed the definition of discrete structure, and I hope now you people have clear idea of what is discrete mathematics and how it is different from the other branches of mathematics, and what is the perfect meaning of discrete and then structures. And then I started with the first chapter of this course, which is logic. Okay, so I discussed logic with some examples, how you can define the term logic and how you can differentiate between logic and mathematics. And then the first topic of the chapter logic is propositional logic. And then I started what is propositional logic. So to understand propositional logic, first you will have to understand what is a proposition. Just let me add few other students. Okay, so say to understand positional logic, because here in this logic first we have to deal with the propositional logic, though we have other types of logic. Say for example, digital logic is there, but we shall not cover digital logic in this course. So I said, for better understanding of propositional logic, you first know what is a proposition, and we learned that proposition is nothing but any statement which is either true or false, but not both. Okay, so based on this definition, we discussed many examples. Okay, so I'm not going to repeat these examples. I think it is very much clear now. Then we discussed how to identify that whether particular statement is not a proposition. So also I discussed many examples which were based on proposition, and some were based on a statement which were not propositions. Let me add few other students. So now after 2 minutes, I will not add any other students, because I told you in last lecture that I'm just allowing you, because these are my first classes. I will not allow latecomers. Okay, so you will have to be punctual, whether you are attending my physical class or whether you are attending my online class. Okay, in both these cases you will have to be punctual. Then I discuss other examples based on proposition, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए कि proposition होती जो कि मैं कवर कर रहा था based on truth tables. तो यहाँ पे मैंने last lecture we have to learn different types of logic operations. So to let's say an operator or connective combines one or more operand expressions into a larger expression, for example plus in numeric expression. तो बेटा already आपने different types of जो operators हैं वो you have already covered in programming fundamental. Say for example, you have covered logical operators, you have covered relational operators, you have covered arithmetic operators. Okay, so all these operators can be unary
or they can be, say for example, binary, okay, operators. So say for example, if we take an example of -3, so here -3, I mean here minus is what? It is a unary operator, okay, because it needs only one operand. So minus is operator, and a number after this operator is operand. Similarly, binary operators take two operands, for example 3 plus 2. So now you can see here we have two operands. So these are operands, and the middle one, the symbol of plus is here, is working here as an operator. So these are arithmetic operators, but propositional or Boolean operators. Now we have to deal with the propositional operators or Boolean operators. Now what are Boolean operators? I will discuss later on in this class. But these operators operate on propositions. They do not operate on numbers, like these are the numbers. Okay, but the propositional or Boolean operators operate on propositions. तो मैंने आपको बताया था कि जो proposition होती है उसकी truth values होती हैं. A proposition can be true and proposition can be false. Beta, can you hear me? Someone has asked कि आपकी आवाज नहीं आ रही. Beta, just someone can reply via chat कि मेरी बेटा आपको आवाज आ रही है? Okay. वो ठीक है बेटा, अच्छा okay. So बेटा, as I have discussed, कि proposition is any statement which is either true or false but not both. तो हर एक proposition की truth value होती है. तो truth value can be true and truth value can be false. बच्चे ये समझते हैं कि truth value means it will always be true. So ये नहीं होता. truth value में दोनों चीजें आ जाती हैं, true भी आ जाता है और false भी आ जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोपोजिशनल ऑपरेटर्स जो अभी हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो उस पर बेस करता है कि प्रोपोजिशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं दे ऑपरेट ऑन प्रोपोजिशंस. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑन नंबर्स. तो नंबर्स हमें नहीं चाहिए होंगे यहाँ पे. वी हैव टू डील विद द प्रोपोजिशन, वी हैव टू डील विद द प्रोपोजिशंस, ओके, इन प्रोपोजिशनल और बूलियन ऑपरेटर्स. सो नाउ द बूलियन डोमेन इज अ सेट. इन केस ऑफ बूलियन जो आपके पास जो सेट होगा वैल्यूज का, वो हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. दिस इज अ सेट एंड इट हैज ओनली टू वैल्यूज, ईदर ट्रू और फॉल्स. अगर मैं कहूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड देन यू विल कैरी ऑन अप टू इनफाइनाइट नंबर्स. तो उसको हम डोमेन कहेंगे. आगे जाके जब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे देन वी शैल आल्सो डिस्कस दिस टॉपिक के डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है. ओके, सो ईदर ऑफ इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड अ बूलियन वैल्यू. ठीक है, इसको हम कहेंगे बूलियन वैल्यू. तो बूलियन वैल्यू या तो ट्रू होगी या बेटा फॉल्स होगी. ओके, नाउ फॉर द ट्रुथ टेबल्स n tuple from pn to pn of boolean values is called a boolean n tuple. अब यहाँ पे tuple का जो स्पेसिफिक वर्ड है बेटा वो यूज कर रहे हैं फॉर द रोज, क्योंकि टेबल इज बेस्ड ऑन कॉलम्स एंड रोज. जो भी आप टेबल बनाएंगे उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे बेटा और उसमें नंबर ऑफ रोज भी होंगी. ओके, सो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं टर्म टपल, ये यूज कर रहे हैं फॉर दी रो. और ये टर्म आगे आप यूज करेंगे जब हम रिलेशंस को पढ़ेंगे. एंड इन फोर्थ सेमेस्टर व्हेन यू विल स्टडी डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस में भी हम टेबल से ही डील करेंगे. तो उसमें भी आपको ये टर्म काम आएगा कि टपल्स क्या होती हैं. तो लेटर ऑन जब हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि भाई टपल क्या होता है और वो ये चीज रिपीट होगी. लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि टपल इज नथिंग बट अ रो इन अ टेबल. तो एक रो में, सॉरी एक टेबल में रो एक भी हो सकती है P1 to Pn, और 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी प्रोपोजिशंस, आपकी कितनी प्रोपोजिशन आप डील कर रहे हैं. तो अब कैसे फाइंड करेंगे वो भी आपको बताऊंगा कि हाउ यू फाइंड कि हाउ मेनी रोज विल बी देयर इन अ ट्रुथ टेबल. ओके, सो an operand truth table is a table that assigns a boolean value to the set of all boolean n tuples. अब हम just a minute. So this is the format of truth table. लेकिन इसको मैं कवर करूंगा. Let me first cover the first operator, negation operator. Okay, so now the first
यहाँ पे जो बेटा नेगेशन है, इट इज अ यूनिनरी नेगेशन ऑपरेटर, इसको हम यूनिनरी ऑपरेटर कहते हैं, और वी रिप्रेजेंट दिस ऑपरेटर विद दिस सिंबल, इसको हम टिल्डा भी कहते हैं। ये जो आप सिंबल बेटा देख रहे हैं, तो यू विल हैव टू डील विद मेनी डिफरेंट सिंबल्स व्हिच यू हैवंट सीन इन इंटरमीडिएट क्लासेस। तो मैं एक चार्ट भी आपसे शेयर कर दूंगा जिसमें सारे सिंबल्स के नाम भी हैं, तो वो भी आप देखेंगे, तो जैसे आप आगे जाएंगे तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सिंबल किसके यूज करेंगे। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस सिंबल इज टिल्डा, टिल्डा TILDA, और यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे एज अ नेगेशन के लिए, नॉट के लिए, ठीक है। सो इट ट्रांसफॉर्म अ प्रोपोजिशन इनटू इट्स लॉजिकल नेगेशन। अब सिंपल मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं, नेगेशन का एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास प्रोपोजिशन है, इफ P इज अ प्रोपोजिशन, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि प्रोपोजिशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल लेटर्स, इट कैन बी PQRS और इट कैन बी ABCD, व्हाटएवर यू वांट टू लाइक, तो आप लिख सकते हैं इसमें। तो बेटा एक फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं प्रोपोजिशन की, P इज अ प्रोपोजिशन और इज इक्वल टू किसकी है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आई हैव ब्राउन हेयर, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है और बिल्कुल ये वैलिड प्रोपोजिशन है। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू डिपेंड करती है ऑन दी कलर ऑफ हेयर। अगर आपके ब्लैक कलर है तो ये इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी, और अगर आपके ब्राउन हेयर है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई ये जो प्रोपोजिशन है, इसका नेगेशन फाइंड करें, इस पर अप्लाई करें नेगेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो यू कैन सी देन यू हैव टू अप्लाई दिस सिंबल जो कि हम कहते हैं टिल्डा, और मेरे यहाँ पे भी इसको लिखा हुआ है। तो मैं अब नेगेट कर रहा हूं इसको, और जस्ट लेट मी एड फ्यू अदर स्टूडेंट्स। सो अब क्या करेंगे, जब नॉट P हो जाएगा, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, नॉट P, ओके। ये P है, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट। इसको जब नेगेट प्रोपोजिशन लॉजिक लाइक नॉट P इज इक्वल, अब इसको यूज करेंगे, इट इज नॉट द केस दैट आई हैव ब्राउन हेयर, या सिंपली आप लिखते हैं आई डू नॉट हैव ब्राउन हेयर, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। आप नेगेशन में, नेगेशन ऑपरेटर क्या करता है, नेगेट कर लेता है। से फॉर एग्जांपल आज अगर फ्राइडे, तो मैं कह रहा हूं P इज अ प्रोपोजिशन दैट टुडे इज फ्राइडे, ठीक है, टुडे इज फ्राइडे। तो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई इसकी नेगेशन फाइंड करें, इस पर नेगेशन ऑपरेटर अप्लाई करें, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इट इज नॉट द केस दैट टुडे इज फ्राइडे, और सिंपली कह देंगे टुडे इज नॉट फ्राइडे। अगर मैं कह रहा हूं टुडे इज नॉट फ्राइडे, उसको नेगेट करें तो क्या हो जाएगा, टुडे इज फ्राइडे, ठीक है। सो अब नाउ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस ऑपरेशन बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो ये इसकी नेगेशन की ट्रुथ टेबल है, लेकिन ट्रुथ टेबल को समझने से पहले यू हैव टू फाइंड कि कितनी रोज बनेगी, यानी कितनी टपल इसमें होंगी। तो उसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा एक प्रोपोजिशन है P, ओके, वी हैव वन प्रोपोजिशन P एंड इट इज इक्वल टू, कोई भी प्रोपोजिशन आप ले सकते हैं, टुडे इज फ्राइडे, सो ये असल में आई एम नॉट यूज्ड टू विथ पिन ब्रश, तो इसलिए ठीक है बच्चे। सो ये क्या लिखा है, P हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, टुडे इज फ्राइडे, ठीक है। अब अगर मुझे अगर एक प्रोपोजिशन गिवन है, तो हाउ मेनी रोज विल बी देयर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, 2 पावर n यूज करेंगे, फॉर्मूला 2 पावर n, ओके। अब n क्या है, नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में वी हैव ओनली वन प्रोपोजिशन बेटा, तो 2 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और पावर भी क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज हमारे पास एक ही प्रोपोजिशन है P। अगर दूसरी होती Q, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाता, 2 आ जाता, एक्सपोनेंट वहां पे 2 हो जाता, तो 2 पावर 1 इज इक्वल क्या होगा, 2 होगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज बनेंगी बेटा एक प्रोपोजिशन को, जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी उसके लिए हमारे पास 2 रोज बनेंगी, बेटा क्लियर है। अगर हमारे पास दूसरी होती प्रोपोजिशन Q, और हम कहते कि भाई टुडे इज रेनी डे, तो फिर हम 2 पावर n क्या हो जाता, 2 पावर 2 हो जाता। तो 2 पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर 1 तो मीन्स 2 आ जाएगा, ऑलरेडी आपने कवर किया हुआ है। तो इट मीन्स अगर नंबर ऑफ, अगर आपको गिवन है कि भाई
number of proposition given है अगर आपको, तो you can easily find the number of rows for a particular table. ठीक है, तो अब if we see this table, but do not focus on these. इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो if we see truth table for negation, तो say for example एक proposition है today is Friday. ठीक है, तो या तो वो ट्रू हो सकती है, ठीक है, या तो वो फॉल्स हो सकती है. अब ये ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ बेटा मैं किसके लिए, नेगेशन ऑपरेटर के लिए बना रहा हूँ. तो पी कोई भी प्रोपोजिशन हो सकती है, एक ही प्रोपोजिशन है, टुडे इज फ्राइडे कह दें, माय नेम इज अब्दुल वहीद कह दें, वी आर स्टडिंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये भी हो सकती है प्रोपोजिशन. तो दो में हो ट्रूथ टेबल, या तो डिस्क्रीट मेथड पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे. नाउ इन केस ऑफ नेगेशन ऑपरेटर, तो ट्रू को आप उसकी वैल्यू होगी वो फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, से फॉर एग्जांपल टुडे इज फ्राइडे में पी जो प्रोपोजिशन है वो क्या कह रही है, टुडे इज फ्राइडे. ओके, इट्स ट्रू, तो उसकी अगर नेगेशन फाइंड करेंगे तो हो जाएगी फॉल्स. और अगर फॉल्स है यहाँ पे तो उसकी नेगेशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. सिमिलरली आप जब डीएलडी पढ़ेंगे तो उसमें आप नॉट गेट पढ़ेंगे. तो पहले तो आपके पास प्रोपोजिशन लॉजिक आई थी, डीएलडी तो बाद में आई थी. So you will see the application of this negation operator again in DLD, where in the form of negation operator, in the form of not gate. Okay, या जिसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं, तो वो भी आप देखेंगे in DLD. ठीक है बच्चा, तो ये मैंने टेबल बना ली है किसकी, दिस इज द टेबल ऑफ नेगेशन ऑपरेटर. लेकिन अगेन आई वांट टू वेरीफाई दिस फ्रॉम द बुक, और आपको बुक पढ़ना पड़ेगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, तो ये जो स्लाइड्स मैं बना रहा हूँ जो बनी हुई है, दे आर ऑल दीज स्लाइड्स आर फ्रॉम द बुक. लेट मी एड फ्यू अदर स्टूडेंट्स. अगेन दे आर लेट, बट आई एम अलाउइंग देम टू ज्वाइन क्लास ओनली फॉर टुडे. ओके, सो बेटा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट पी बी अ प्रोपोजिशन. हम अज्यूम कर रहे हैं कि पी एक प्रोपोजिशन है. द नेगेशन ऑफ पी, ठीक है, डिनोटेड बाय, अब दो सिंबल्स यहां भी यूज किए हैं, डिनोटेड बाय टिल्डा नॉट पी, आल्सो डिनोटेड बाय पी डैश. बेटा देख रहे हैं पी डैश आपको नजर आ रहा है, या पी बार कह सकते हैं इसको आप. ओके बेटा, बुक भी शेयर कर दूंगा मैं. कोशिश करूंगा कि मैं समवन इज आस्क्ड कि सर बुक शेयर कर दें, तो मैं बुक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, या उस पर अभी अपलोड कर दूंगा एलएमएस पर. ठीक है बच्चे, सो डिनोटेड बाय. ओके, अब ये सिंबल आपको पता है किसकी है, ये सिंबल है आपकी टिल्डा मींस नेगेशन की है. नॉट पी या पी बार भी कह सकते हैं बेटा, दो हमारे पास सिंबल्स है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेगेशन को. अब जब भी आप नॉट पी रखेंगे तो इट मींस उसमें आप यूज करेंगे इट इज नॉट द केस. फॉर्मली में से लिखते हैं इट इज नॉट द केस दैट पी. अब पी कुछ भी हो सकती है, कोई भी प्रोपोजिशन हो सकती है, टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज रेनी डे. ओके, I am watching television. Okay, so the proposition not p is read not p. इसको हम ऐसे पढ़ते हैं बेटा, not p पढ़ते हैं इसको. And the truth value of the negation of p means not p is the opposite of the truth value of p. अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन है, मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल अभी स्लाइड में समझाई थी. से फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहूँ कि फाइंड द नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन, एक प्रोपोजिशन गिवन है उसकी नेगेशन फाइंड करनी है आपको. सो माइकल्स पीसी रन्स लिनक्स, ये प्रोपोजिशन है कि माइकल का जो पीसी है वो लिनक्स यूज करता है, रन करता है. अब इसको हमें, अगर मैं इस प्रोपोजिशन की नेगेशन को बेटा मैं इंग्लिश में एक्सप्रेस करूं तो कैसे होगा. द नेगेशन इज इट इज नॉट द केस दैट माइकल्स पीसी रन्स लिनक्स. ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मली ऐसे लिखते हैं, या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइकल्स पीसी डज नॉट रन लिनक्स. ठीक है बच्चे, तो ये क्या होगी, इसकी नेगेशन होगी. एक और एग्जांपल भी दे देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आ सके कि हम इंग्लिश में कैसे करते हैं ट्रांसलेट. ठीक है, जब आप एक्सरसाइज देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन होंगे वेयर यू हैव टू ट्रांसलेट द प्रोपोजिशंस इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस. ठीक है, अब ये है फाइंड द नेगेशन ऑफ द प्रोपोजिशन व्हेन डेनास स्मार्टफोन हैज एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी. अब ये क्या है, ये प्रोपोजिशन है. अब उसने कहा कि उसकी जो मेमोरी होगी स्मार्टफोन की वो 32 GB है. अब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. अगर होगी तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है. अब इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, लेकिन इसकी नेगेशन को ट्रांसलेट करना है. इस स्टेटमेंट की, इस प्रोपोजिशन की नेगेशन को हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. तो फॉर्मली इसे लिखते हैं इट इज नॉट द केस दैट बेंटेनास स्मार्टफोन हैज एटलीस्ट 32 GB ऑफ मेमोरी. या ऐसे लिख सकते हैं
के लेकिन वी हैव अदर ऑपरेटर्स विच वी कैन अप्लाई ऑन मल्टीपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जब एक स्टेटमेंट में मोर देन वन स्टेटमेंट्स होंगी तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। तो लास्ट में मैंने एग्जांपल आपको दिया, टुडे इज फ्राइडे, ओके, so it was an example based on unary, only one statement. अब हम assume कर रहे हैं कि भाई we have two propositions, P है it is hot, ठीक है, और Q है it is sunny। अब हमारे पास दो propositions हैं, it is hot and it is sunny। so it is hot and sunny, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम end, this is symbol of but end operation, okay, just a minute। के we have two propositions, एक proposition है P और दूसरी है Q which is it is sunny। now we have end operation, और end operation क्या को कैसे हम करेंगे represent with this symbol। और ये जो symbol है बेटा, if anyone know the name of this symbol, can anyone reply via chat कि इस symbol का नाम क्या है, आपने कभी देखी है? definitely I will let you know कि इसको क्या कहते हैं, इसका असल नाम क्या है। लेकिन if anyone have idea about this, बेटा एंड है, बिल्कुल आप सही करें, एंड है, लेकिन इसका नाम क्या है सिंबल का? सिंबल का बेटा नाम पूछ रहा हूं मैं, आई एम नॉट आस्किंग के डेफिनेटली आई एम रिप्रेजेंटिंग एंड, ये एंड है बेटा, बिल्कुल सही करें आप, लेकिन इसका नाम क्या है? जैसे इसका मैंने आपको नाम बताया, टिल्डा कहते हैं। अब ये सिंबल है, नॉट के यूज होती है, तो आप क्या कहेंगे? इस सिंबल का नाम क्या है? आप नॉट थोड़ी कहेंगे। सो द नेम ऑफ दिस सिंबल इज टिल्डा, ठीक है। तो इस सिंबल का नाम क्या है? एनीवन? एनीवन नो? if anyone have idea about the name of the symbol, so beta okay I am telling you because ट्रू होगी। इट इज हॉट एंड सनी, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पी क्या है? इट इज हॉट, ठीक है, और क्यू क्या है? इट इज सनी, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज हॉट एंड सनी, या ऐसे लिख सकते हैं इट इज हॉट एंड इट इज सनी, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं से फॉर एग्जाम्पल पी को नेगेट कर लूं, तो अगर मैं इस लॉजिकल ऑपरेशन को अगर मैं ट्रांसलेट करूं इंग्लिश में, तो क्या हो जाएगा? अब ये पी को नेगेट करना पड़ेगा आपको, और पी क्या है? इट इज हॉट, तो नेगेशन क्या हो जाएगी? इट इज नॉट हॉट, ठीक है, बट सनी। और गेटिंग मी? लेकिन क्योंकि ये नॉट हो जाएगा और ये वही रहेगा, लेकिन ये आज सनी है। इट इज नॉट हॉट बट इट इज सनी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अगर दोनों को मैं नेगेट करूं बेटा पी को भी नेगेट करूं और क्यू को भी नेगेट करूं, तो आप लिखेंगे इट इज नीदर हॉट नॉट सनी, ऐसे भी इंग्लिश लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं इट इज नॉट हॉट एंड इट इज नॉट सनी। बेटा आ रही बात समझ में? तो जस्ट अ मिनट। अब बेटा ये हम ट्रू टेबल बनाएंगे पी एंड क्यू की, ठीक है। तो यहीं पे बेटा मैं बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अच्छा एंड ऑपरेशन जो है बेटा वो हम यूज करते हैं जब हमें उसकी ट्रुथ वैल्यू जो कंबाइन, जब हम कंबाइन करेंगे प्रोपोजिशंस को, मोर देन टू प्रोपोजिशन, तो उसकी वैल्यू ट्रू तब आएगी जब दोनों ट्रू होंगी, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रोपोजिशन है पी और दूसरी क्या है बेटा? क्यू है। आई एम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोपोजिशन। तो अब कितनी रोज बनेंगी बेटा इस टेबल में? अब इसमें 4 बनेंगी रोज। कैसे बनेंगी अभी हमने सीखा। आई एम अगेन गोइंग बैक कि भाई एक प्रोपोजिशन है टुडे इज फ्राइडे, या इसको हम कहते हैं टुडे इज हॉलीडे, और पी क्या है और क्यू क्या है? क्यू इज टुडे इज today is a rainy day, okay, RAINY day, rainy day, okay। तो बेटा अब दो हमारे पास प्रोपोजिशन है, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ टुडे इज फ्राइडे नहीं है, टुडे इज हॉलीडे, ठीक है, और क्यू क्या है? टुडे इज रेनी डे, ठीक है। तो
आज के दिन बरसात हो रही है, टुडे इज रेनी डे, और आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे, फ्राइडे नहीं बेटा। तो 2 पावर n क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? लेट मी erase दिस वन। तो यहाँ पे 2 पावर n क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब जो है वो कितनी प्रोपोजिशंस हैं? 2 प्रोपोजिशंस हैं, तो कितनी टपल्स बनेगी, कितनी रोज बनेगी? तो 2 पावर 2 आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब 2, ये 2 कहां से आया? बिकॉज वी हैव 2 प्रोपोजिशंस p एंड q। तो 2 पावर 2 बेटा क्या होगा? आपको पता है, मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंट जब 2 होगा तो बेस जो है 2 टाइम्स क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई होगा। तो यू विल हैव वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी, ठीक। अब ये वैल्यू आ गई 4, तो कितनी बेटा रोज बनेगी? ओके, अगर हमारे पास 2 प्रोपोजिशन हैं, एक है टुडे इज हॉलीडे और सेकंड क्या है? टुडे इज रेनी डे, ठीक है बच्चे? दैट्स गुड, ओके। सो अब P एक स्टेटमेंट है, टुडे इज हॉलीडे, ओके, ट्रू है। अगर मैं कह रहा हूँ बाकी आज छुट्टी है तो ट्रू आएगा। एंड इट इज रेनिंग टुडे, तो अब मैं जब ये अप्लाई करूंगा P एंड Q, ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ P और उसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल इस सिंबल को। ओके, अब देखें P एंड Q आ गया यहाँ पे, तो इसकी अल्टीमेट वैल्यू ट्रू आएगी, क्योंकि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर ट्रू आएगा। आज छुट्टी भी है और आज बरसात भी हो रही है, देन वी शैल गो फॉर पिकनिक। अब पिकनिक पर हम तब जाएंगे जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, छुट्टी भी होगी और मौसम भी अच्छा होगा, यानी बरसात होगी से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आएगी? एंड ऑपरेशन में ट्रू आएगी। और अगेन मैं सेकंड रो ले रहा हूँ, सेकंड जो कॉम्बिनेशन बनेगी, फर्स्ट कैन बी ट्रू, टुडे इज हॉलीडे, लेकिन आज जो है वो इट इज नॉट रेनी डे, इट इज रेनी डे। इसका नेगेटिव बेटा क्या हो जाएगा? नेगेशन क्या हो जाएगी? टुडे इज नॉट रेनी डे और इट इज नॉट रेनिंग, तो ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। हम वी शैल नॉट गो फॉर पिकनिक। पिकनिक पर तब जाएंगे जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, बरसात भी होगी यानी मौसम भी अच्छा होगा और आज छुट्टी भी होगी, तो हम पिकनिक पर जाएंगे, अदरवाइज वी शैल नॉट गो फॉर पिकनिक। तो एंड ऑपरेशन हम इस कंडीशन यूज कर सकते हैं। सिमिलरली टुडे इज नॉट हॉलीडे, अगर मैं कह रहा हूं टुडे इज हॉलीडे, तो उसकी नेगेशन क्या हो जाएगी? टुडे इज नॉट हॉलीडे, ठीक है। तो हो सकता है ट्रू। तो अल्टीमेट क्या होगा? आज छुट्टी नहीं है लेकिन आज बरसात हो रही है, अगेन वी शैल नॉट गो फॉर पिकनिक। जब एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो फिर अगेन जो अल्टीमेट वैल्यू आएगी वो फॉल्स आएगी, ठीक है बच्चे। सिमिलरली टुडे इज नॉट हॉलीडे एंड टुडे इज नॉट रेनिंग और इट इज नॉट रेनी डे टुडे, तो डेफिनेटली वी शैल नॉट गो फॉर पिकनिक। नहीं बरसात हो रही, नहीं आज छुट्टी है, तो हम वैसे ही नहीं जाएंगे पिकनिक पर। बेटा क्लियर बात? तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ व्हाट आई कैन से ऑफ एंड ऑपरेशन, ठीक है। और इसको हम एंड ऑपरेशन को प्रोपोजिशन लॉजिक में वेज की सिंबल से करते हैं रिप्रेजेंट। बेटा क्लियर है? तो दिस इज द वे, आई मीन वी जस्ट लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोपोजिशन। तो पहला जो मैंने एग्जांपल लिया वो नेगेशन ऑपरेटर का लिया, जिसमें जो कि यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। और अब मैंने एंड स्टार्ट किया जो कि बाइनरी ऑपरेटर है, बिकॉज वो उसके लिए हमें 2 चाहिए एटलीस्ट प्रोपोजिशंस। अब लॉजिक ऑपरेटर्स में पहले आपने देखा नॉट है, सो ये टिल्डा के थ्रू ऐसी बेटा इसको लिखते हैं बुक में, और समटाइम ऐसी भी लिखी होती है सिंबल इसकी, ठीक है। सो P इज ट्रू इफ P इज फॉल्स, तो वो ट्रू तब होगा जब वो फॉल्स होगी। तो ये नॉट P को जब अप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ नॉट, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड ऑपरेशन अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेशन की फिर मैंने ट्रुथ टेबल यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको भी देख ले। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको टेबल्स को याद करना नहीं पड़ेगा, आपको समझना है, इसको समझना है, एंड को, एंड क्या है, ये नॉट क्या है। तो यू विल फाइंड मेनी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है। नाउ दिस इज अनदर ऑपरेशन, अदर ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर है यहाँ पे इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, वो है आर। और बेटा ये सिंबल आपको पता है, वी यूज दिस सिंबल फॉर आर ऑपरेशन, लेकिन इसका भी नाम है
if anyone knows the name of this symbol, you can V. Yes, very good. So हमजा रजा, you are right. इसको हम V कहते हैं बेटा, ठीक है। तो इस सिंबल का जो असल नाम है V है, जैसे लाइक इसका नाम होते हैं वेज, इसका नाम है टिल्डा, तो इसका नाम है V कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, वो यूज कर रहे हैं फॉर R। अब R जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल ऑपरेटर है, तो उसमें ये अगर टुडे इज हॉलीडे एंड इट इज रेनिंग टुडे, वी शैल गो फॉर पिकनिक। टुडे इज हॉलीडे बट इट इज नॉट रेनिंग टुडे, अगेन वी शैल गो फॉर पिकनिक। तो जो R होता है ये इंक्लूसिव R है, आगे हम और भी पढ़ेंगे, इसकी और भी टाइप है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव R। तो ये इंक्लूसिव R क्या है कि इसमें अगर एक भी अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो वेल एंड गुड, अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी कि अगर बरसात भी हो रही है, आज छुट्टी भी है, तो हम पिकनिक पर जाएंगे। आज छुट्टी है, बरसात नहीं हो रही, अगेन वी शैल गो फॉर पिकनिक। आज जो है बरसात हो रही है या अच्छा वेदर है, तो अगेन वी शैल नॉट गो फॉर पिकनिक। ठीक है बेटा, आरी बात समझ। तो इसको हम कहेंगे आर ऑपरेटर। अब मैं थोड़ा आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ वी कैन रीड द बुक, बिकॉज आपको सब्जेक्ट में मेरा जो फोकस होगा आप बच्चों के लिए, आप बुक रीडिंग करें। जब तक बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। अब जस्ट आई वांट टू शो यू कि भाई किस तरीके से देखें। अब देखें ये दोनों ऑपरेशन अभी हमने पढ़े, तो इसको मैंने वही बुक से ही लिए हुए हैं। लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस। अब इसको हम कहते हैं एंड को डिसजंक्शन। दूसरा नाम क्या है बेटा, द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। ये पी बेटा, ये जो फेज आप देख रहे हैं अभी हमने जो पढ़ा स्लाइड्स में, तो उसको हम डिसजंक्शन भी कहते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज कि ये कहां से आ गया वर्ड। डिसजंक्शन हम यूज करते हैं फॉर एंड, डिनोटेड बाय ओके पी आर क्यू, एंड इट इज अ प्रोपोजिशन पी आर क्यू, and the disjunction PRQ is false where both P and Q are false and is true otherwise। ठीक है, तो disjunction जो है हम यूज करते हैं बेटा R के लिए, सॉरी इसके लिए यूज करते हैं हम disjunction। conjunction यूज करते हैं इसके लिए, एंड के लिए। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर दोनों ट्रू हैं, आंसर में जो आपका आएगा रिजल्ट वो ट्रू आएगा। ये फॉल्स तब होगा जब दोनों इनपुट आपके पास फॉल्स होंगे, दोनों पोजीशन फॉल्स होंगी, उसमें भी फॉल्स होंगी, तो वो अल्टीमेटली फॉल्स आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना कि इसको हम डिसजंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली एंड ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा लिखा हुआ है इसके बारे में, जस्ट आई वांट टू शो यू कि देखो बेटा इसका ये क्या है बेटा, इट इज एन इंक्लूसिव आर। यहाँ पे लिखा है इंक्लूसिव आर। अभी मैंने डिस्कस किया कि इंक्लूसिव आर है मीन स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास। अब वो बच्चे जिन्होंने कैलकुलस साइंस सिलेक्ट किया है या तो उसने कैलकुलस किया है, अगर दोनों की अच्छी बात है। अगर कोई एक भी किया तो वो अटेंड कर सकता है क्लास, बाकी और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इन दोनों में से या दोनों उसने सिलेक्ट किए हो या उसमें से कोई एक सिलेक्ट किया हो, तभी आप अटेंड कर सकते हैं क्लास, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एंड अप्लाई करेंगे तो एंड में फिर क्या होगा कि आपको स्टूडेंट हु हैव टेकन कैलकुलस एंड कंप्यूटर साइंस, वो बच्चे जो कि कंप्यूटर साइंस में आए हैं और कैलकुलस भी उन्होंने सेलेक्ट किया है, वही क्लास अटेंड कर सकेंगे, बाकी कोई नहीं कर सकेगा। तो दोनों जो है आपको उसमें टू होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंड ऑपरेशन। ठीक है बच्चे, सो okay sir, can you please explain or disjunction truth table? Okay beta, I again to repeat this। तो बेटा R की ट्रूथ टेबल ये है। ठीक है, इसको हम डिसजंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी कि ये डिसजंक्शन क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू R। उसमें जो अगर आपके पास जो प्रूफ है ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर कोई एक भी फॉल्स है और दूसरी ट्रू है फिर भी ट्रू आएगा। ठीक है, थर्ड में अगर फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स है तो फिर फॉल्स आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव आर। तो इसके बाद अगेन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव आर। ठीक है बच्चे, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? प्लीज यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी।
from today's class. But kindly question पूछें, don't feel hesitation. You can ask any question. Okay, बच्चे. So if you do